newspapers became more and more popular. English newspapers started arriving. But even today, the heart of India lies in 6 lakh villages and not in metropolitan cities. And in those days, and perhaps even today, whatever used to print in the newspaper was deemed to be truth. Whether it was actually truth or not, it was immaterial. Vartman Patrat लिहून आलंय was enough. That was the credibility of newspapers then. Then radio arrived. But to younger generations to which I then belong, radio was more an entertainment than knowing news, the knowing events. Then TV, then so many channels. When I see a particular news bulletin on one channel, my wife starts complaining. Why are you seeing so many channels to again and again see the news and views on TV news channels? So I am surprised many household women must be enjoying TV channels more for new entertainment, seeing various serials, than views and news. Another thing which I have noticed is somehow editors have become redundant and irrelevant. If I ask someone here, tell me who is the editor of Times of India, it will be hard for our students of media and even communication, Chandan, to say who is the chief editor of Times of India. But there are exceptions, and you are the one exception, and you are going to speak your views to our students. I am sure your views will not only inspire the young minds, but they will ignite their minds. With this in hope in my mind, I once again welcome you. And I only hope that this should not be your last visit. Keep on coming to this institute again and again. Thank you. Thank you, sir. Your words are always an inspiration to all of us. Shri Rajat Sharma is chairman and editor-in-chief of India TV, the nation's most watched news channel. He is best known for his popular show, Aapki Adalat. The show has continued to captivate viewers for a record 20 years. He has grilled over 800 personalities with a trademark smile in the longest-running television show in India's television history. This show has got him the Best Anchor Award several times, including the Indian Television Academy Lifetime Achievement Award. Before branching out into television, Mr. Sharma made a mark with a distinguished 10-year tenure in the print media, where he was the editor of important national publications. The transition from a successful print editor to an international television news personality, and then from a manager-entrepreneur to an entrepreneur-manager, are perhaps unique in the Indian media. He was acclaimed Entrepreneur of the Year 2009 at the National Convention organized by Exchange for Media. In 1995, he created history by launching India's first private television news bulletin. This bulletin was beamed across satellite footprints in Asia, Europe, and North Africa, and it became the beacon light of freedom and impartiality in the Indian television news genre. When Rajat Sharma launched India TV, no one had imagined that it will be India's #1 news channel in a short span of 4 years. Rajat Sharma and India TV are now called nation's news leaders. A nationwide survey conducted by Hindustan, the leading Hindi daily, named Mr. Sharma as the hero of the media industry. In their citation, the editors of Hindustan noted that, with his commitment to win the market, Mr. Sharma changed the very meaning of television news
and he did not rest until he had taken India TV right at the top. Under Mr. Sharma's leadership, India TV has created benchmarks in innovation, impact, ratings, time spent, and viewer support. Indeed, India TV's news breaks have inspired talk shows on rival channels, Bollywood films, BBC documentaries, articles in the Time magazine, and even Amul Holdings. The channel's popularity is no accident. It is the result of Mr. Sharma leading the way on the lonely path of credibility first. It is the result of the efforts of a self-made man who kept both his feet firmly to the ground, a journalist for whom the viewer's interest has always been paramount. We will now play a short AV, which is glimpses of his career. लेकिन इतने रन बनाने के बाद भी जब आउट हो जाते हैं तो बैक पर आते हैं। सेंचुरी के बाद हो या जीरो में उन्हें तो उतना ही आता है, उनके भी थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा आता है। मैं सुना इतना गुस्सा आता है कि गाली की बात लेके मेरे कंट्रोल से कभी मैं एक दिन रोया नहीं। मैं रोया इसलिए हूँ कि मैं अकेला पड़ गया। मीडिया और देश के नेता कैसे विश्वास करे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जो अपराधीकरण, जो लोग करप्शन में इंटरेस्ट करते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं। To address the gathering with his topic, Challenges Before Media. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मजूमदार को प्रणाम करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने 44 साल के अथक परिश्रम से एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जिसका आज पूरी दुनिया में नाम है। हमें जो बचपन में पढ़ाया गया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्ममयी, तो मुझे लगता है कि एक गुरु आज मैंने देखे हैं, एक टीचर ऐसे देखे हैं जिनको वाकई में भगवान जैसा मान सकते हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से एक टीचर ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, आप बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर विद्या जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मुझे एक जगह मिली थी और उन्होंने 2-3 वाक्य कहे थे और उन 2-3 सेंटेंसेस ने मुझे इतना प्रभावित किया, जो कुछ इन्होंने सिम्बॉयसिस के बारे में कहा, इंस्टीट्यूशन के बारे में कहा, और जैसे ही इन्होंने इनविटेशन भेजा मैंने तुरंत हाँ कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपने जो कुछ अभी पर्दे पर देखा है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं, अपने अनुभवों की बात करूं, तो कोई ऐसे सेक्सी अनुभव नहीं है जैसे ये पर्दे पे दिखाई देते हैं। जब मैंने ज़िंदगी शुरू की थी, जब आंखें खुली थी, तो एक बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ था। आज इंट्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर, चेयरमैन, बहुत कुछ कहते हैं, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन, एक सब सपना सा लगता है। जो याद है मुझे, डॉक्टर साहब, एक 10 बाई 10 का कमरा था पुरानी दिल्ली में, सब्जी मंडी में, 3री मंजिल पर। उसमें 7 भाई, एक बहन, एक बीमार माँ और एक बीमार पिताजी। 10 लोग हम उस कमरे में रहते थे। आज जब आप अपना अनुभव बता रहे थे, मुझे वो एक एक चीज़ बचपन की याद आ रही थी। खाने के लिए कभी होता था, कभी कभी 2-2, 3 दिन तक बिना खाए गुजारा करना पड़ता था। पढ़ने के लिए एक साधारण म्युनिसिपल स्कूल में जाते थे, जिसमें टाट पट्टी पर बैठते थे,
ब्लैक बोर्ड नहीं था, कभी कभी टीचर्स नहीं होते थे। नहाने के लिए घर में पानी नहीं था, तो एक गली के नुक्कड़ पे एक नल था, उस पर जाके चाहे सर्दी हो गर्मी हो वहाँ से नहा के आते थे, और 2 बाल्टी पानी एक बहन के लिए एक माँ के लिए लेके आते थे। रात को पढ़ने के लिए घर में बिजली नहीं थी, तो एक रेलवे स्टेशन था पास में किशनगंज का, वहाँ जाके पढ़ते थे, वहाँ सारी रात बिजली होती थी। इस दुख ने, इस संघर्ष ने कभी कभी बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन हमारे बाबूजी थे जिन्होंने इस संघर्ष से लड़ना सिखाया। एक दिन मैंने उनसे कहा कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, भूख है, गरीबी है, तो उन्होंने कहा कि इसमें घबराने की क्या बात है, ये जीवन तो संघर्ष की एक भट्टी है, अगर तुम सोना हो तो इस भट्टी में से तप करके दूसरी तरफ निकल जाओगे, अगर सोना नहीं हो तो इस भट्टी में भस्म हो जाओगे, क्यों ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं। ये वाक्य उनका मेरे जीवन का ब्रह्म वाक्य बन गया, और मैंने तय किया कि संघर्ष से, गरीबी से, भूख से, भय से डरना नहीं। और मित्रों, आज पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं उसमें संघर्ष है, चुनौती है, खतरे हैं, भय है, लेकिन इस संघर्ष से आप कभी हताश मत होना। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिला है। आप जब जीवन में आगे बढ़ेंगे, जब जब संघर्ष आए, तब ये सोचिएगा कि अगर हम में दम है, अगर हम में सोना है, अगर हम खड़े हैं, तो इस तपती भट्टी से निखर करके दूसरी तरफ बाहर निकलेंगे। और मुझे विश्वास है कि इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने डॉक्टर मजूमदार की तपस्या का प्रताप आपको है, आप लोग संघर्ष की भट्टी से इस जीवन में आप निखर करके सोना बन के इस समाज को सुधारेंगे। आपको ये इंस्टीट्यूशन, ये प्रोफेशन, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन सपने देखना सिखाएगा। और सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, और फिर अपने आप को तैयार करिए उन सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे डॉक्टर मजूमदार ने एक सपना देखा था, अपने जीवन काल में उन्होंने यह सपना पूरा किया। मेरे बचपन में सपने बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि अभाव था, तो बहुत कुछ सोचते थे। तो ये सोचते थे कि किसी तरह से हायर सेकेंडरी पास करके किसी बैंक में क्लर्क बन जाएंगे। उन दिनों बैंकों में ओवर टाइम मिला करता, तो ज़्यादा काम करेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे कि 2 वक्त की रोटी घर वालों को खिला सकेंगे। छोटे सपने थे, लेकिन बाबूजी के मन में ऐसा नहीं था। इतने संघर्ष, इतना कुछ होने के बाद भी उनके मन में जो बातें थी, उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर साहब को याद होगा कि उस जमाने में सिर्फ दूरदर्शन था, और दूरदर्शन पर एक फिल्म दिखाई जाती थी हफ्ते में एक बार। आधी फिल्म शनिवार को दिखाते थे और आधी फिल्म संडे को दिखाते थे। तो हमारे घर में तो बिजली नहीं थी, तो अब घर में टीवी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, रेडियो भी नहीं था, तो किसी पड़ोसी के घर में हम लोग कभी कभी देशभक्ति की फिल्में आती थी, वो देखने जाते थे। एक दिन शनिवार को शहीद फिल्म आ रही थी, वो देखने गए, और संडे को जब उसका दूसरा हिस्सा देखने गए तो उन्होंने घर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो मैं बहुत उदास होके, दुखी मन से घर लौटा। बाबूजी ने पूछा कि क्यों इतने दुखी हो? तो मैंने कहा कि हम वो टीवी पर फिल्म देखने गए थे शहीद भगत सिंह को,
और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं 8-9 साल का था, कभी कोई कल्पना नहीं थी कि हम ज़िंदगी में क्या करेंगे। बाबूजी ने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अरे कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। कैसे उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, क्या उनके मन में था, मुझे बहुत बाद में समझ आया। लेकिन उन्होंने हमारे सपनों को बड़ा किया, उन्होंने बड़े सपने देखना सिखाया। मैंने स्कूल में अच्छे नंबर मिले, मुझे मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुझे एडमिशन मिल गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी कि मैं उस इंस्टीट्यूशन में जाऊं। आपको अगर आज देखें तो हमारे साथ उस इंस्टीट्यूशन में अरुण जेटली जो आज राज्यसभा के लीडर हैं वो थे, रोहिंटन नारिमन जो सॉलिसिटर जनरल थे वो उस कॉलेज में थे, ये रंग दे बसंती बनाने वाले फिल्म मेकर हैं ये हमारे साथ उस कॉलेज में थे। आज कोई लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई लोग किसी इंटरनेशनल डॉशे बैंक के जो आज सीईओ हैं वो कॉलेज में थे। सब लोग बड़े बड़े परिवारों से, बड़े बड़े घरों से, बड़े बड़े स्कूलों से आते थे। लेकिन मेरे मन में कभी भी बाबूजी की ट्रेनिंग की वजह से ये ख्याल नहीं आया कि हम किसी तरह से छोटे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात सिखाई थी, सबसे बड़ी चीज नॉलेज है, सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो कोई कितनी भी दौलत वाला हो वो आपको नीचा नहीं दिखा सकता। और मित्रों, ये दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जीवन में संघर्ष करें, जब जीवन में सपने देखें, तो इस बात का ध्यान रहे कि जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, जिस फैकल्टी ने हमें पढ़ाया है, हो सकता है कि उनके पास आज उतना बड़ा घर ना हो सकता है आज उनकी तनख्वाह उतनी ना हो जितनी आज हमारी है, लेकिन हम जो कुछ हैं उन गुरुओं की वजह से, उन टीचर्स की वजह से हैं, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान करके हमें बड़ा बनाया। क्योंकि उनके पास नॉलेज की दौलत है, नॉलेज का भंडार है, जो हमारी किसी भी दौलत से, किसी भी पैसे से बड़ा है। तो जीवन में कभी भी अपने गुरु का सम्मान न भूलें। कॉलेज में जब पढ़ते थे तो सपने और थोड़े बड़े हो गए, सोचा कि लेक्चरर बनेंगे, टीचिंग का प्रोफेशन अपनाने का मेरा मन था। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां थी एमकॉम करने के बाद में, तो एक उस समय बहुत बड़े पत्रकार थे जनार्दन ठाकुर, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे 2 महीने की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में कुछ रिसर्च का, राइटिंग का काम दिया और उससे ये मेरा एक अलग रास्ता शुरू हुआ। मैं जर्नलिस्ट बना, 1985 में ऑनलुकर मैगजीन का एडिटर बन के मुंबई आया, लंबी कहानी है। लेकिन जो परिवर्तन हुआ जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे, करीब 20 साल पहले, अभी शायद आपने पूछा था कैसे शुरू हुआ ये आपकी अदालत। मैं मुंबई में डेली न्यूज़पेपर का एडिटर था। टीवी तो देखने का भी ज़्यादा समय नहीं मिलता था, उस पर कोई प्रोग्राम करना तो कोई कारण नहीं था, कभी सोचा नहीं था। हम फ्लाइट में थे, सुभाष चंद्रा उस ZTV के ओनर थे, उन्होंने उस समय 2-3 महीने पहले ही ZTV शुरू किया था और उसकी रेपुटेशन कुछ ऐसी थी। ZTV पर उस समय प्रोग्राम ऐसे होते थे, जंगली तूफान, टायर पंचर, सांप सीढ़ी, तो बड़ा अजीब सा उसके बारे में परसेप्शन था। तो फ्लाइट में गुलशन ग्रोवर जो एक्टर है, ये मेरे कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, इन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे इस आदमी से इंट्रोड्यूस करा दो, ये जो फ्रेंच कट दाढ़ी वाला है, इसके चैनल पर अगर मेरा इंटरव्यू आएगा तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैंने उस सुभाष जी से कहा कि भाई इनका इंटरव्यू कराइए। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो इंटरव्यू करने वाले नहीं है, आप क्यों नहीं इंटरव्यू करते। तो मुझे बड़ी बेइज्जती सी लगी कि मैं इतना बड़ा एडिटर अखबार का, इसका इंटरव्यू करूँगा।
तो मैंने उन्हें अपनी एरोगेंस में जवाब देना शुरू किया। मैंने कहा देखिए साहब, 2 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा क्या होना चाहिए? मैंने कहा एक कटघरा लगाइए, नेताओं को उसमें बिठाइए, उन्हें जूते मारिए, पब्लिक के सामने उनकी खिंचाई करिए, उनके ऊपर एक चार्जशीट लगाइए, तब जाके लगेगा हाँ भाई कुछ बात हुई है। काफ़ी मैंने इसके ऊपर शायद 15-20 मिनट का भाषण दिया होगा उनको। हम लोग लैंड कर गए, वापस मैं अपने घर चला गया, वो अपने घर चले गए। तो कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने अपने क्रिएटिव डायरेक्टर से आपका वो जो प्रोग्राम है वो अदालत वाला वो डिस्कस किया है। तो मैंने पूछा कौन सा प्रोग्राम? तो उन्होंने कहा वो जो आप कह रहे थे। मैंने कहा साहब वो तो वैसे ही मजाक में मैं बात कह रहा था, कौन आएगा कटघरे में, कौन बैठेगा? तो उन्होंने कहा नहीं आपको। और काफ़ी दिन तक ये जद्दोजहद उनके बीच में चलती रही, लेकिन फिर एक दिन मुझे मजबूर होना पड़ा और पहला प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया। मुझे याद है 12 फरवरी 1993 को पहला आपकी अदालत हमने लालू यादव के साथ रिकॉर्ड किया था। ये वो नहीं है जो आज जिसकी ग्लिम्स आपने देखा। मैं आपको बताऊं कि पहले दिन की रिकॉर्डिंग का हाल ये था कि लालू जी को शाम को आना था 4 बजे। उन्होंने सुबह मुझे 11:30 बजे फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप आ रहे हैं? आप कहाँ आ रहे हैं? हम आपका स्टूडियो में आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपको तो शाम को आना था। नहीं, हमारा शाम का फ्लाइट कैंसिल हो गया है और हमको जल्दी जाना है। तो मैंने कहा देखिए साहब, अभी तो पहली बार, अब सुबह तो मुझे रिहर्सल करना था, अभी सेट भी तैयार नहीं है, अभी तो वहाँ पर हमारे कैमरामैन नहीं पहुँचे होंगे। तो कहा कि देखिए हमारे साथ 2 फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फ़ोटो खींचता है। तो मैंने कहा लालू जी वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कैमरा दूसरा है। अरे छोड़िए ना, और फ़ोन रख दिया। अब उस ज़माने मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो मैं स्टूडियो पहुंचा। जो रात भर जिन लोगों ने सेट पर काम किया था, लाइटिंग की थी, वो लोग सब सो रहे थे। सबको उठाया जल्दी जल्दी, तो लोग इकट्ठा हुए। अब हमारे पास ऑडियंस नहीं थी, क्योंकि ऑडियंस को तो शाम को आना था 4 बजे। प्रोग्राम के जज थे कुलदीप नायर, वो उनका कोई अता पता नहीं था। तो लालू जी वहाँ पहुँच गए और वो आसपास घूमने लगे। तो मैं उनको दिखाने लगा, देखिए स्टूडियो है, कैमरा है। तो आधा घंटे बाद मुझे कहा आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या? तो मैंने कहा देखिए कुछ तैयार नहीं है, अभी लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे लोगों ने, तो जो मुझे रिहर्सल करनी थी वो भी मैं नहीं कर पाया। तो 1 घंटे बाद किसी तरह से लोगों ने तैयारी की और उन्होंने कहा कि ठीक है ये शो को शुरू करते हैं। पहली बार मैं शो कर रहा था, लेकिन मैंने उसके पहले कभी कुछ किया नहीं था। तो जब शुरू हुआ तो अचानक से मैंने पूछा, जो ऑडियंस के सबसे पहले दिक्कत आई तो पास के एक बिल्डिंग में, उस समय ये फिल्म सिटी नोएडा में नया नया बन रहा था, तो उसमें जो लेबर काम कर रही थी, वो आधे नंगे मिट्टी में सने हुए लोग, तो वो सब मेरे ऑडियंस बन गए। तो लालू जी उनको वहाँ खड़े हो गए, लालू जी उनको कह रहे थे आवा आवा आवा, तो वो लोग मैंने अपनी तरफ से बहुत तैयारी की थी कि करीब अब 700-800 लोगों को इंटरव्यू किया था, जिनको ऑडियंस बनना था, उनको बहुत तैयारी कराई थी, लेकिन वो सब धरा रह गया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मैंने पहला सवाल पूछने लगा तो इतनी देर में, चूंकि वो कुलदीप नायर नहीं पहुंचे थे, तो हमने किन्हीं एक राइटर थी, उनको एक मेकशिफ्ट जज बना दिया था। तो सबसे पहले लालू जी ने कहा अरे भाई नारियल तो नहीं फोड़ा आपने? तो एक नारियल लाए, वो नारियल फोड़ा। फिर दोबारा शुरू किया तो डायरेक्टर ने कहा कि ये इन्होंने जो नारियल फोड़ा है उससे पूरे फ्लोर के ऊपर निशान बन गए। अब वो कैमरा में पैचेस दिखाई देंगे। तो जो हेयर ड्रायर होता है वो लेके उसको फ्लोर को सुखाया। फिर शुरू किया। फिर मैंने पहला सवाल पूछा तो इतनी देर में जो हमारे ओरिजिनल जज थे कुलदीप नायर, उनको किसने बुला लिया था, वो आ गए। ओ मैनू की करना है भाई। तो फिर दोबारा, खैर उसके बाद 3-4 बार डिस्टर्ब होके ये प्रोग्राम शुरू हुआ। और मैं अपने मन में सोच रहा था जिस प्रोग्राम को शुरू होने में इतनी मुश्किल हो रही है उसका क्या होगा। और आपको एक राज की बात बताता हूँ, वो पहला प्रोग्राम था, जब वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो सब ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, लालू जी बहुत अच्छे उन्होंने जवाब दिए, मुझे मालूम नहीं क्या हो गया था कि अच्छे से सवाल पूछ लिए, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने कुछ ऐसे बातें कही कि चंदा मामा दूर के, पोए पकाएं पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने ऐसी बातें, बहुत उन्होंने इंटरेस्टिंग शो बनाया था।
एक आदमी ने एक बच्चे ने उनसे पूछा कि देखिए हमारे जो चाचा जी हैं वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे उसमें बिहार के, तो आपके बिहार में एक कॉलेज के अंदर वो प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा देखिए बिहार में मामा के नाम पे, दादा के नाम पे, दादी के नाम पे, नाना के नाम पे, नानी के नाम पर बना लिया कॉलेज, नो परमिशन तो नो एडमिशन। तो अपने भैया जी से आप कहिए कि वो कुछ और काम ढूंढ लें। ऐसे उन्होंने इंटरेस्टिंग जवाब दिया, इट बिकेम ए वेरी इंटरेस्टिंग शो। लेकिन जब ख़त्म हो गया, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई, तो जो प्रोग्राम के उस समय डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा अच्छा हुआ, एक छोटी सी सर कमी रह गई है। मैंने कहा क्या हुआ बताइए, क्या कमी रह गई? साहब एंकर का ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो मैंने कहा ये एंकर का शो है। तो वो पूरे के पूरे सवाल दोबारा करके उसको पैचवर्क करना पड़ा। लेकिन एक विश्वास उससे ये पैदा हो गया कि कितनी भी मुश्किल से, क्योंकि जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ लोगों ने पसंद किया, उसके बाद तो मुझे खुद ही नहीं मालूम कि कैसे मेरी लाइफ बदल गई। लेकिन एक चीज़ मन में साबित हो गई कि अगर शुरुआत में खराबी भी हो तो ये मान के नहीं बैठ जाना चाहिए कि भाई ये तो किस्मत खराब है, ये तो हुआ ही नहीं ठीक से, ये तो कुछ होगा ही नहीं। ये सब चीज़ें किस्मत की बात नहीं होती है। कभी कभी शायद परीक्षा लेता है भगवान, आपके सामने मुसीबतें खड़ी करता है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे